اور ہمارا روزہ مذہبی روزہ نہیں ہے. اگر سال کے اندر 365 دن ہے تو 365 دن میں ہم کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. متی کی انجیل کو نکالیں گے ہم اپنی رہنمائی کے لیے. 6 باب اور اس کی میں 16ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. مقدس کلام میں لکھا ہے, متی کی انجیل نکال لی ہے سب نے؟ 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خداوند کے پاک کلام کے کھولے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. ہاللویا. روزہ کیا ہے؟ ہم نے مقدس کلام پڑھا, اور جب تم روزہ رکھو. یہاں پر یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اگر تم روزہ رکھو, لکھا ہے جب تم روزہ رکھو. مطلب کہ اس کی نفی نہیں ہے, یہ ضروری ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اور ضروری نہیں کہ ہم ان ایام میں رکھیں جب روزے جو ہے وہ جاری ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس لیے یسوع جو ہے وہ اپنی یہاں پر تعلیم دیتے ہوئے لوگوں کو یہ لکھتے ہیں, اور جب تم روزہ رکھو, جب بھی رکھو, تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. مقدس کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں؟ ہلاک ہوئے جاتے ہیں. بچپن سے لے کر آج تک ہم روزوں کے بارے میں, ایسٹر کے بارے میں, صلیبی کلمات کے بارے میں, کرسمس کے بارے میں تعلیم جو ہے وہ پاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. لیکن پھر بھی جب بھی روزے آتے ہیں لوگ عجیب عجیب سوالات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب پھر بھی کچھ نہیں پتا ہے, کیونکہ ہمارے روزے جو ہے وہ فرضی روزے نہیں ہیں, نہ ہی جبرن ہے, نہ ہی زبردستی ہے, نہ ہی ہم پر لاگو کر دیے گئے ہیں کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے. روزہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں روزہ ہے, انگلش میں فاسٹنگ. اگر ہم دیکھیں تو یہ روزہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے, جس کا مطلب ہے کھانے پینے سے پرہیز کرنا. عربی اور عبرانی زبان کے اندر لفظ صوم ہمیں ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ صوم, جس کا مطلب ہے منہ کو ڈھانکنا, اپنے منہ کو ڈھانکنا, یعنی کچھ نہ کھانا اور گھیان اور دھیان کرنا اور سوچنا. کیا سوچنا؟ خدا کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں, اس کی ذات کے بارے میں, اس کے کاموں کے بارے میں, تاکہ ہم مزید اس کے قریب ہو سکیں. کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے. زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ہم وقتاً فوقتاً اس پر بات کرتے رہیں گے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں کھانے کے علاوہ بھی ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے, انہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے, ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گناہوں کو, اپنی خطاؤں کو, اپنی نظروں کو
अपने किरदार को जो है हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। खुदा का वक्त खुदा को देने की जरूरत है। अगर हम इसी रोजे को यूनानी में देखें तो यूनानी में लफ्ज आता है नाइस्टियो, जिसका यही मतलब हमें मिलता है परहेज करना। लेकिन इसमें परहेजगारी के साथ हमारी जो खाने पीने की चीजें हैं उसके अलावा जो है और जिंदगी की चीजें जो जिस्मानी हम लोग जो है वो रंगीनियों में पड़ जाते हैं, उन चीजों से भी परहेज करने की ताकीद की गई है, तालीम दी गई है। हमें ये बताया गया है कि हमें इन सारी बातों को जो है वो छोड़ना है जो हमें खुदा से, यीशु से, उसके कलाम से, उसकी बातों से दूर करते हैं। बच्चे जो है वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ मस्ती चल रही है अभी भी। आप लोग बेहतर ये है कि अलग अलग होकर बैठ जाए, सारे 3 हैं वही बच्चे नहीं सीधे होते हैं। और गौर से सुनने में बीच में पूछ सकती हूँ, मैंने फारसी जुबान का जिक्र किया, मैंने अरबी और इब्रानी जुबान का जिक्र किया, और मैंने यूनानी जुबान का जिक्र किया। बच्चों मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मैंने क्या जिक्र किया। बाइबल में हमें रोजे की तालीम मिलती है कि हमें खुद को आजिज बनाना है, तौबा करनी है, दुआ करनी है, रूहानी तौर पर हमें उसके साथ उसकी कुर्बत में जो है और उसकी तलाश में अपने वक्त को गुजारने की जरूरत है। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानित अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकार यानी हिपोक्रेट्स। कौन? हिपोक्रेट्स। यहां पर मैं बात कर रही थी कि यीशु ने हमें रोजे की तालीम, रोजा रखने से मना नहीं किया, बल्कि क्या कर रहा है यहां पर वो, he correct the motive behind the रोजा, behind the fasting। उस चीज को जो है वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमें जो है इन चीजों को खुद पर नजर करने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने आप से दूर करना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटा सा सर्वे जो है वो आपको करवाना चाहती हूं कि बनी इस्राइल के रोजे, उनकी मश्क क्या थी, इनफरादी या शख्सी रोजों की मश्क क्या है जो हमें बाइबल के अंदर मिलती है, और इज्तिमाई रोजों की मश्क क्या है। इस्राइल जो है वो एक दिन का रोजा यानी यौमे कफारा का रोजा, जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, वो एक दिन का रोजा था जो यौमे कफारा के तौर पर रखा जाता था। और एक और रोजा हमें मिलता है जो इस दुख की घड़ी में मनाया जाता था, रखा जाता था, जब यरूशलेम पर चढ़ाई हुई। ये 10वें महीने की 10वीं तारीख को हमें मिलता है ज़करिया और सलातीन की दूसरी किताब के अंदर। फिर एक और रोजा हमें मिलता है 4थे महीने की 10वीं तारीख को, जो यरूशलेम पर कब्जा होने की सूरत में दुख को मनाया जाता है, जब यरूशलेम पर कब्जा हो गया। फिर एक और रोजा हमें मिलता है जो 5वें महीने की 10वीं तारीख को रखा जाता था, यानी उस वक्त जब हैकल बर्बाद हो गए। हैकल की बर्बादी की दुख में जो है वो इस्राएली रोजा रखा करते थे। और ये सारे रोजे जो है वो इज्तिमाई रोजे हैं। पूरी कौम, पूरी बनी इस्राएल जो है वो मिलकर इन रोजों को रखा करती थी। फिर हमें इनफरादी यानी शख्सी रोजे का जिक्र हमें मिलता है। मैं एक्चुअली उस क्वेश्चन को क्लियर करना चाह रही हूँ जिसमें लोग कहते हैं कितने घंटे का रोजा होना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, कब खत्म करना चाहिए। जो बाइबल में हमें तालीम मिलती है हम पहले उनको देख लेते हैं। इनफरादी जो शख्सी रोजा की बात है, 40 दिन का रोजा
मूसा ने रखा। जब वो पहाड़ पर गया, जब खुदा ने उसको जो है वो 10 अहकाम दिए। खरूज के अंदर भी मिलता है, और खरूज 24 बाब में और 34 में, यानी मूसा ने 2 दफा 40 दिन का रोजा रखा। फिर हमें एलिया का रोजा मिलता है जो 40 दिन का था। जैक सही से बैठे। फिर हमें यस्सु का रोजा मिलता है जो 40 दिन और 40 रात का था। मत्ती की अंजील में हमें मिलता है। फिर हमें एक और रोजा मिलता है जो 21 दिन का है, जो दानियल नबी ने रखा, यानी 3 हफ्ते का रोजा था वो। फिर दाऊद का हमें एक रोजा मिलता है जो उसने 7 दिन के लिए रखा, यानी 1 हफ्ते का रोजा, जब वो अपने बेटे की जिंदगी के लिए खुदा से दुआ और इल्तिजा कर रहा था। इनको मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूं क्योंकि हमें बात करनी है कुछ और। फिर हमें हन्ना जो नबिया थी, लोग कहते हैं कि पौलुस ने कहा है कि औरत का मजमे में बात करना, यानी औरत का कलाम करना जो है वो मना है। एक नबिया हमें मिलती है हन्ना, जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल जो है वो हैकल के अंदर गुजारे, और वो उसके बारे में लिखा है कि वो हर वक्त दुआ और रोजे में रहती थी। हर वक्त कोई ऐसा कर सकता है? हर वक्त दिन और रात रोजे में, दुआ में, उसकी कुर्बत में। क्या ही पावरफुल वो वुमेन होगी जो हर वक्त हैकल में रहती थी और खुदा की कुर्बत में दुआ और रोजे के साथ जुड़ी रहती थी। अपनी इस लाइफ में मैंने अपने ताया जी को देखा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो खुदा को जब दी तो डेली उनका रोजा होता था। वो शाम को 7 बजे कुछ खाते और पीते और उसके बाद फिर उनका रोजा शुरू हो जाता था, और जब तक उनकी जिंदगी रही है उनकी लाइफ में ऐसा ही रहा है। लेकिन वो कभी भी कमजोर नहीं हो गए, कभी भी बीमारी उनके करीब नहीं आई, कभी भी जो है वो अपने आप को जो है वो रहा हुआ या कमजोर या बीमार नहीं उसने महसूस किया। मेरे वालिद के जो है वो सबसे बड़े भाई थे वो। ये मैंने पहली दफा उनको, यानी अपनी लाइफ में ऐसे शख्स को देखा जो दिन रात जो है वो दुआ में रहता था, और जब वो कहीं चले जाते थे तो ऐसा लगता था कुछ हो रहा है यहाँ पे, मामूली सी। हमने सीखा ना कि उसकी आवाज क्या है, लफ्जों पर मामूर नहीं है, लफ्जों की मोहताज नहीं है, वो एक रोशनी है। जहां वो आ जाता है सारी अकलें खुल जाती हैं। आमीन आमीन। हर तरह की आवाजें हमें समझ आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया हालेलुया। फिर हमें पौलुस रसूल का रोजा मिलता है, जो उसने जब यस्सु के साथ उसका इनकाउंटर हुआ उस वक्त, उसके बाद उसने लिखा है कि ना 3 दिन ना 3 रात जो है वो उसने कुछ खाया, बल्कि वो दुआ में जो है वो झुका रहा। फिर हमें इज्तिमाई रोजा मिलता है जो आसर ने यहूदी कौम को बचाने के लिए रखा था। कितने दिन का रोजा था, किसी को याद है? 3 दिन का। 3 दिन का रोजा। फिर नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, जब नैनवा के लिए ये कलाम जारी हुआ कि खुदा जो है वो उनको तबाह बर्बाद करने को है, तो उन्होंने क्या किया? पूरी कौम ने जो है वो एक इज्तिमाई रोजा रखा, जो 3 दिन का रोजा। फिर हमें बनी इसराइल का रोजा मिलता है, जो इज्तिमाई तौर पर, जो हमने ऊपर भी सीखे कि बनी इसराइल जो है वो कफारे का रोजा रखती थी। यरूशलेम पर जब कब्जा हुआ, हैकल की बर्बादी हुई, तब जो है वो रोजा रखते थे, तो वो पूरी जमात के तौर पर रोजा रखते थे। फिर हमें अमाल के अंदर नई कलीसिया, जो इब्तदाई कलीसिया कहलाती है, उसके बारे में भी हमें मिलता है अमाल के अंदर कि वो कलीसिया पूरी की पूरी जो है वो एक जगह जमा होती थी, और उनका पैसा, उनका खाना, उनका रहना जो है वो एक साथ इकट्ठे वो मिलकर रहते थे, और इकट्ठे जो वो दुआ और रोजे में जुटते थे। तो
रोजे का दौरानिया क्या है, हमें बाइबल में 24 आवर्स का भी रोजा मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक का भी रोजा मिलता है, 2 दिन का, 3 दिन का, 40 दिन का, 3 हफ्ते का, 1 हफ्ते का रोजा मिलता है। तो जब मैं इस पर मेडिटेट कर रही थी तो मेरे सामने एक बात आई कि फिर लोग इस क्वेश्चन को किस तरह जो है वो अपने अंदर क्लियर कर सकते हैं। तो एक वर्ड मेरे सामने, एक सेंटेंस आया जो मैं आपके सामने बयान करती हूँ। वहां पर लिखा था, इट्स योर कमिटमेंट विद गॉड। कितने देर का, कितने दिन का, कितने वक्त का रोजा होना चाहिए, इट्स योर कमिटमेंट कि आप कितने वक्त का रोजा रखते हो। या आपको खुद अगर नहीं समझ आती तो आप दुआ में झुके और खुदा से रहनुमाई मांगे कि मुझे कितने दिन का रोजा रखने का जो है वो आप फजल दोगे। जब मैं मसीह में न्यू थी तो आपको पता है उस वक्त एक अलग से जो है वो अपने ऊपर उसकी हजूरी, मामूरी और उसकी कुदरत को जो है वो मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं हवाओं में उड़ती रहती हूँ। हफ्ते में 2 रोजे मेरे मस्ट थे, लाजमी थे कि मैं हफ्ते में 2 रोजे रखती थी। और एक दफ़ा मैंने खुदा से दुआ की कि मुझे कुछ लंबा रोज़ा रखना है, तो मुझे रूह में हिदायत मिली कि मुझे 3 दिन का रोज़ा रखना है। मैंने 3 दिन का रोज़ा रखा, दिन रात कुछ भी नहीं खाया। ऐसा नहीं कि शाम को खोला और अगले दिन फिर रख लिया, ऐसे तो बहुत सारे रोज़े रखे मैंने, लेकिन 3 दिन का इकट्ठा रोज़ा रखा। फिर मैंने सोचा कि 3 दिन मैंने इकट्ठा रोजा रख लिया है, मुझे तो कुछ भी नहीं मसला होगा, ना खाने की भूख लगी ना प्यास लगी मुझे, तो क्यों ना मैं इसको कंटिन्यू कर लूं। जब मैंने चौथे दिन रोजा रखा तो मैं गिर गई, मैं फेंट हो गई। मतलब मेरी कमिटमेंट या मुझे खुदा की रहनुमाई यही थी कि मुझे 3 दिन का रोजा रखना है। लास्ट ईयर पास्टर साहब ने 40 दिन का रोजा रखा, 40 दिन इकट्ठे उन्होंने रोजे रखे। वो शाम को 7 बजे अपना रोजा खोलते और फिर साथ ही दुआ करके अगले दिन का, तो 40 दिन वो उन्होंने खुदा के साथ कमिटमेंट की और खुदा ने उन्होंने ये फजल बख्शा कि वो 40 दिन का रोजा जो है वो रख सके। तो मैं बात कर रही थी कि ये जो है हमारी खुदा के साथ कमिटमेंट है कि हमें कितने वक्त का रोजा जो है वो रखना चाहिए। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हमें खुदावन के पाकरू की रहनुमाई की जरूरत है। फिर हम पढ़ते हैं कि रियाकार की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। मैं अपने मैसेज की तरफ दोबारा आती हूँ कि रियाकार ना बनो, यानी हिपोक्रेट, बी नॉट एज अ हिपोक्रेट। ये यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है एक्टर, यानी एक्टिंग करने वाले। someone wearing a mask on the face, एक्टर ऐसे ही करते हैं ना, मास्क ना हो तो भी वो और तरह के जो है वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुदा के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखावे के लिए रोजा रखते हैं। उनका मकसद जो है वो लोगों से प्रेज करवाना है। उनका मकसद क्या है? लोगों से परहेज करवाना है। प्रेज कर, जो लोग उनका जो है वो प्रेज करें, उनकी तारीफ करें और उन्हें वाह वाह करें। लिखा है कि रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। हमें उनकी तरह हिपोक्रेट नहीं बनना है, अपने मुंह को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि वो क्या करते थे, जो एक सेल्फ हाइजीनिक केयर होती है या सेल्फ ग्रूमिंग होती है, वो उसको निगलेक्ट करके ऐसे शो करते थे कि हमने जो है वो रोजा रखा हुआ है। आज भी कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। एक बंदे ने, एक शख्स ने घर में रोजा रखा होता है और पूरी फैमिली को मुसीबत डाली होती है। मेरे नेड़े ना आई मैं रोजा रखा, मैनू ना कुछ कही मैं रोजा रखा, ऐसे ही करते हैं ना। मेरा रोजा ना खराब करी, मेरा रोजा खराब ना करी, हाँ मेरा रोजा खराब ना करी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, ऐसे वो लोग जो दिखावे का रोजा रखते हैं, मुकद्दस कलाम फरमाता है कि वो अपना अजर पा चुके। क्या किया उन्होंने? अपना अजर पा लिया है।
छठे बाब को जब मैं तिलावत कर रही थी, मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं जिस चैप्टर में से पढूं उसको पूरा पढूं, शुरू में क्या है, एंड में क्या है, और बीच में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें शुरू में जो है वो खैरात के बारे में है। पहली 5 आयत जो है, 4 आयत वो खैरात के बारे में हमें मिलती हैं। उसमें भी लिखा है कि वो अपना अजर पा चुके, ऐसे ही है। फिर दुआ के बारे में लिखा है, जो रास्ते में खड़े होके हिपोक्रेट्स दुआ करते हैं, फिर उनके भी लिए लिखा है वो अपना अजर पा चुके। क्या हमें ऐसा अजर पाना है जिसके लिए खुदा ने, यीशु ने यहाँ पर तालीम दी कि वो अपना अजर पा चुके। हमने इस दुनिया में अजर नहीं पाना है, हमने उससे रिवॉर्ड हासिल करना है जिसकी हजूरी में हमने जो है वो दुआ और रोजा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। फास्टिंग जो है वो खुद को खुदा की हजूरी में झुकाना है, जबकि हिपोक्रेसी क्या है? गुरूर करना है, अपने आप को जोरावर समझना है। लेकिन वही जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। फरीसी कमजोर नजर आने के लिए रोजा रखते थे, लेकिन रूहानी तौर पर वो मगरूर थे। हकीकी रोजा क्या है? हकीकी रोजा गरूर को कमजोर करता है। क्या करता है? गरूर को कमजोर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें रूहानी तौर पर उसके साथ बढ़ने की जरूरत है। फिर आगे लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। जब भी रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर? तेल डाल। मुझे याद है जब लोग रोजा रखते थे, अभी भी कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि जब वैसे तेल लगाए ना लगाए, लेकिन जब रोजा रखते हैं तो कलाम में लिखा है तेल जरूर लगाओ। अगर हम इसका जिस्मानी मतलब लेने की बजाय रूहानी मतलब ले कि हमें किस तरह जो है वो रहना है, बट बेशक यहाँ पर जो है वो हमें जिस्मानी मतलब भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लिखते हैं, जब लिखा है कि वो अपनी सूरत बिगाड़ते हैं, वो अपने आप को ऐसा एक्टर बन के दिखाते हैं कि हम कमजोर हैं, हम जो है रोजा रखे हुए हैं, तो वो सेल्फ ग्रूमिंग को निगलेक्ट करते हैं। तो इसलिए यीशु यहाँ पर तालीम देता है कि आपको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का जरूर ख्याल रखना है, सर में तेल डालना है, अपना मुंह धो के रखना है। ऐसा नहीं है कि मुंह सुबह से शाम तक धोया ही नहीं ताकि नजर आए कि मुंह पे 12 बजे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें जो है अपनी सेल्फ ग्रूमिंग को जो है वो मद्देनजर रखना है। हमें खुद को, जैसे हम अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं, जैसे हम रूटीनली तैयार होते हैं, कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, हमें अपने आप को वैसे ही ग्रूम करके खुदा की हजूरी में भी जाने की जरूरत है। अपने आप को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। रोजे के मकासद क्या है? रोजा तो रखना है, लेकिन कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बेमकसद रोजा रखे जा रहे हैं कि रोजे आए और हमने रोजे रख लिए। नहीं, रोजा हमारा जो है वो बामकसद रोजा होना चाहिए। कोई ना कोई वजूहात हमारी जो है वो इसके साथ होनी चाहिए। सबसे पहला मकसद क्या होना चाहिए हमारा? खुदा की हजूरी, खुदा की हजूरी को हासिल करना। जब हम रोजा रखें तो हम दुआ में और कलाम में उसकी हजूरी में झुके, ताकि नजर आए कि हम उसके लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। एक हमने अभी सीखा कि मूसा ने और किसने? एलिया ने। और फिर तीसरा और किसने? यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद जो है वो बियाबान में चला गया ताकि खुदा की हजूरी में दुआ करे, रोजा रखे। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो हमें ये बात सिखाना चाहते हैं कि
खिदमत के आगाज के लिए हमें दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। अक्सर लोग जो है वो बपतिस्मा ले लें या मखसूसियत करवा लें तो वो कलाम को लेकर जो है वो बशारत के लिए, मुनादी के लिए जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि ठहरे रहो जब तक आलमे बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और यहाँ पर हमें यीशु जो है ये एक नमूना देता है कि जब तक हम खुदा की हजूरी में दुआ और रोजे के साथ ना ठहरे, हम अपनी खिदमत को ना निकलें। यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज करने से पहले जो है वो बपतिस्मा लिया और दुआ और रोजे में ठहरा ताकि उसकी मामूरी को, उसकी कुदरत को, उसके जलाल को, उसके मस्सा को गहरे तौर से जो है वो हासिल करे। बेशक वो खुदा है, उसे इन सारी चीजों की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरे लिए और आपके लिए ये एक नमूना दिया, ये सिखाने के लिए उसने अपने आप को बदन में होते हुए इस प्रोसेस में से गुजरने का जो है वो गुजरने दिया, ताकि वो हमें सिखा सके कि हमें खिदमत के आगाज में खुदा के साथ किस तरह जो है वो चलना है। और रोजा रख के हमें दुआ में जो है वो जरूर झुकने की जरूरत है। और आप इस बात को देखें कि अगर हमारे यीशु को, जो हमारा खुदा है, जो क्रिएटर है, अगर उसको खिदमत के आगाज में दुआ और रोजे की जरूरत है तो मुझे और आपको कितनी जरूरत नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम दुआ और रोजे में ठहरते हैं तो ही हम अबलीस की कुव्वतों पर गलबा पा सकते हैं, रूह की मामूरी से आजमाइशों का मुकाबला कर सकते हैं, अबलीस का मुकाबला करके उसको शिकस्त दे सकते हैं। और खुदावंद यीशु ने यही किया, तालीम देने के लिए, तौबा की मनादी करने के लिए और बीमारों को शिफा देने के लिए खुदा की हजूरी में झुका। ईमानदारों को जो है वो खुदा के दीदार और हिकमत के तालिब होने के लिए दुआ और रोजे में झुकने की जरूरत है। खुदा के दीदार के लिए और हिकमत के लिए और रहनुमाई को हासिल करने के लिए। अमाल की किताब को निकालिए मेरे साथ, 13वां बाप और उसकी दूसरी आयत। हालेलुया। अमाल 13वां बाप उसकी दूसरी और तीसरी आयत, अगर किसी ने निकाल ली है तो पढ़ सकते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। आमीन आमीन आमीन। दुआ और रोजे में झुकने से हमें खुदा की रहनुमाई मिलती है। खुदा रहनुमाई देता है कि हमें किस तरह से और किसको जो है वो खुदा के काम के लिए चुनाव करना है। हमारा चुनाव क्या है, या जो खिदमत में आ रहा है उसका चुनाव क्या है। ये खादमों के लिए है बेसिकली, कि वो दुआ में रुके ताकि खुदा की रहनुमाई और हिकमत को और उसके दीदार को हासिल कर सकें कि उसको किस तौर से जो है वो खिदमत करनी है। रोज़ा के ज़रिए हमें इलाही तहफ़्फ़ुज़ और रिहाई मिलती है। जब अज़रा की किताब को हम पढ़ते हैं तो अज़रा ने क्या किया, रोज़े की मनादी की। रोज़े की क्या की उसने, मनादी की। क्योंकि जब जंग हो रही थी तो क्या हुआ कि उसने बादशाह से कुछ रहनुमाई के लिए ना ही कोई हथियार मांगे और ना ही कोई सिपाही मांगे, क्योंकि उसने बादशाह से कहा था
کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے رہائی بخشے گا. ہاللویا. हालेलुया اور جب اس نے یہ بات کہی تو اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے روزے کی منادی کی. اپنے لوگوں کو، اسرائیل کو کہا کہ خدا کی حضوری میں جھکیں اور روزہ رکھیں تاکہ ہم تحفظ کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہم رہائی کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہم خداوند کے پروں کے نیچے جو ہے محفوظ رہ سکیں، تاکہ ہم اس جنگ کو کیا کریں؟ جیت سکیں. اور پھر ہم نے نینوا کے لوگوں کا روزہ دیکھا جو اجتماعی روزہ تھا. خدا نے ان کی دعا کو سنا اور ان پر جو عذاب آنے والا تھا اس سے ان کو رہائی بخشی. आमीन تو روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں عذاب سے، آنے والے وقت سے، آنے والی مشکل سے، پریشانی سے جو ہے وہ رہائی بخشتا ہے. روزہ جو ہمیں توبہ کی طرف لے کر آتا ہے، خدا کی طرف لے کر آتا ہے. دشمنوں پر غلبہ جو ہے حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزہ جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہماری جنگیں کون لڑتا ہے؟ ہمارا خدا. आमीन کون لڑتا ہے ہماری جنگ؟ ہمارا خدا ہماری جنگ لڑتا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تجھے جو ہے وہ بولنا ہوگا تو خدا کا پاک روح بتائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے. جب جنگ جیتنی ہوگی تو خدا جو ہے وہ آپ تیرے لیے کیا کرے گا؟ جنگوں کو لڑے گا. پہاڑ کیسے بھی ہوں زندگی میں، مشکلات کیسے بھی ہوں زندگی میں، پریشانیاں کیسی بھی ہوں، خدا جو ہے ہمارے لیے اس جنگ کو لڑتا اور ہمیں فتح اور غلبہ بخش دیتا ہے. ہاللویا. हालेलुया ہاللویا. हालेलुया ایک آخری چیپٹر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی، میرے ساتھ نکالیے. ہاللویا. یسایہ کی کتاب. ہاللویا. بہت ہی پاورفل ورسز ہیں یہاں پر ہمیں یسایہ کے اندر ملتی ہیں، کیونکہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور سنی بھی نہیں جاتی. کیا ہوتا ہے؟ سنی بھی نہیں جاتی ہے. یسایہ کے اس پورے چیپٹر کو پڑھیے گا، بہت پاورفل چیپٹر ہے جس میں حقیقی روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے. میں آپ کے سامنے تیسری آیت سے پڑھتی ہوں. چیپٹر نمبر 58. ہاللویا. نکال لیا؟ जी وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. کیونکہ لوگ بہت سارے روزے رکھتے ہیں، دنوں رات روزے رکھتے ہیں، روتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، گلا پھاڑ کر اس کی حضوری میں جو ہے وہ دعا اور روزے میں جھکے رہتے ہیں، پھر بھی وہ روزہ قبول نہیں ہوتا، پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم پڑھیں گے آگے. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. نوجوان اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ میری شادی اس سے کروا دو، ایسے ہی رکھتے ہیں. میں سوری